Okay, thanks Rishikesh for your response. Let's wait for more 2 minutes and we will start our today's session then, okay? Screen is visible to you all. Okay, just wait for more 2 minutes. Till then, if anyone have any doubt, so please let me know if you have any small doubt till here regarding shortcuts, navigation keys, sorting we do not cover till now. Okay, filter and subtotal function. Filter function and subtotal concept is clear to everyone. It is very important, guys. And I want to tell you one more thing. Whenever I ask you something, so try to unmute yourself and tell me. At least give me response yes or no. Okay. Make this training more to more interacting. I think now we are good to go. Yes, everyone. We should start our today's session. Yes, ma'am. Good. At least one student response, guys, whenever I ask you. So it will make me confirm कि I am audible to you all. ओके, सो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था फिल्टर एंड सब टोटल का। तो यहाँ तक आई थिंक किसी स्टूडेंट्स का कोई भी डाउट नहीं है। यस, सो our today's module, what is our today's module or what is our today's agenda? Our today's agenda is sorting. So when, what is sorting? Can anyone tell me what is sorting? Anyone have any idea about sorting? Sorting Yes. in ascending or descending order. यस, कि एक प्रॉपर एक पैटर्न वो फॉलो करे, राइट? उसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग कर दिया हमने, ए टू जेड एंड जेड टू ए, राइट? तो आई विल शो यू वन पीडीएफ ऑल्सो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर theory. So sorting is the process of arranging data into meaningful order so that you can analyze it more effectively. Sorting can be done as follow. How many types of data you have in Excel? I already told you in our previous classes. Tax data we have numeric data, we have date data. So for that different data type, we have different types of sorting. For example, for tax data, we have these two types of sorting. One is A to Z. If we have alphabetical data, so we will sort it according A to Z. Or if we want Z to A, it will depend on our requirement, right? So that is for your tax data. Then for numeric data, smallest to largest and largest to smallest. So that is the definition of your sorting. That is sorting.
फिर पहले हम ये दोनों पार्ट्स कवर करते हैं, देन वी विल कम ऑन सॉर्ट बाय कलर, दैट इज द थर्ड ऑप्शन इन योर sorting. So I will come back in our my Excel sheet, and this is our data. Just a minute. First of all, I always suggest you, whenever you work on any Excel sheet, do little bit cleaning in your data and then you start your work. Control minus, shift cells up. अभी हमारा डाटा क्या है, बिल्कुल क्लीन डाटा है, कहीं पर भी उस डाटा में ब्लैंक वैल्यूज नहीं है. सो नाउ, as you know, we are talking about sorting. So first, that is my first question to you all. Now, anyone from you, unmute yourself and let me know how we apply sorting on this data. Anyone have any idea? Already one or two students tell me what is sorting. So now that is your turn. Tell me how we apply sorting to our data. Yes, Filter. ma'am. Okay. So Ma'am, yes, ma'am. Filter. yes, okay, yes, Rajkumar. So all, whenever we discuss filter, जब हमने डिस्कस किया था फिल्टर का कॉन्सेप्ट, तब मैंने आपको तीन प्रॉपर अप्रोच बताया था कि हाउ वी आर एबल टू अप्लाई फिल्टर ऑन आवर डाटा. फर्स्ट था कि हम क्या करें, कंट्रोल शिफ्ट एल का यूज करें. व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल शिफ्ट एल? कंट्रोल शिफ्ट एल की हेल्प से हमारे डाटा पे फिल्टर अप्लाई हो सकता है. तो इफ आई ट्राई विद कंट्रोल शिफ्ट एल, so filter is on my data. If I click on this data, so we have this type of one pop-up message on our screen, visible to everyone. Now if you see, before filter section we have one more section, that is sorting. Now we are in text column, that's why it's showing us filter text types. sorting का कौन सा टाइप्स हमें दिख रहा है? टेक्स्ट डाटा टाइप, A to Z, Z to A, because your Excel is very very smart. It's already know कि स्टेट कॉलम में जो डाटा है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, और अल्फाबेटिकल डाटा है तो उसको हम किस फॉर्मेट में अरेंज करेंगे? टेक्स्ट फॉर्मेट में. अब या तो A to Z हो सकता है, या फिर उसका अपोजिट क्या होगा? Z to A. दैट इज अ वन टाइप. So if I apply sorting on this column A to Z, अभी मेरा डाटा क्या है? सॉर्ट हो गया. But here we have, in these two columns we have text data, but in last one column what we have? We have numbers data. So for numbers data, if we try, so we have two different options in this pop-up. One is sort smallest to largest, and second one is largest to smallest. Now I give you one example, one real life example for this largest to smallest and smallest to largest. See, we have this sales data. सेल्स कॉलम में क्या है? सेल्स वैल्यू है. सेल्स वैल्यू फॉर अलाबामा साउथ, सेल्स वैल्यू फॉर different regions we have, right? But when my manager is come to my cabin and he or she will ask me, show me highest sales of your Alabama region or your South region. So what is approach I follow at that time? Suddenly I come on this filter icon, in this drop down icon, and largest to smallest. Yes. अब मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुआ. यस, क्योंकि मैंने अभी जस्ट 20 सेकंड पहले बोला आई वांट हाईएस्ट सेल्स फॉर अलाबामा और साउथ रीजन, बट इट विल शो मी फ्लोरिडा स्टेट एंड साउथ रीजन सेल्स. व्हाई? बिकॉज जो लार्जेस्ट सेल हमारा हुआ वो किस रीजन का था? जो हमारा 22,638 इज द हाईएस्ट सेल ऑफ माय sales value. But for which region, for which state? For Florida state and for South region. And second point जो मैंने नोट किया, या अगर किसी स्टूडेंट ने नोट किया है, तो वो होगा कि अगर आप देखें तो मैंने पहले सॉर्टिंग कहाँ अप्लाई की थी? ऑन माय फर्स्ट कॉलम.
straight column, right? A to Z. After it, where I apply my sorting on sales column, largest to smallest. बट अगर अभी आप मेरे डाटा को मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, फोकस करें, तो सिर्फ मेरे सिंगल कॉलम पर sorting अप्लाई है. सो दैट इज द नॉट राइट वे. यस, ये क्या दे रहा है हमें? इनएक्यूरेट डाटा इट विल शो अस. So how we are able to apply sorting on multiple column? That is my second question. First question, what is sorting? Now clear to everyone? What is sorting? Second, how we are able to apply sorting? So first approach मैंने आपको दिखाया with the help of shortcut Control Shift L. And where is the second option? Just a minute, I will show you. Under Home tab, we have editing section. In this editing section, we have one drop down icon for sort and filter. If you click on this sort and filter, see, we have option for sorting as well as for filter. Now, if I want to remove this sorting from my column, so click on it. How we will remove it from my data? How we will remove? जन एक कंट्रोल शिफ्ट एल की हेल्प से हमने क्या किया? अप्लाई किया फिल्टर. बट इफ आई प्रेस अगेन कंट्रोल शिफ्ट एल, तो फिल्टर एंड सॉर्ट रिमूविंग फ्रॉम माय existing data. Now I want again, so select your column header under Home tab, come in your sort and filter section, click on this sorting filter. अब A to Z या Z to A. अब अगर मैं A to Z सिलेक्ट कर दूं, सॉर्ट A to Z, क्या दिखाएगा? यहाँ पे एक आपको ऑप्शन आया एक्सपांड दी सिलेक्शन. यस, सॉर्ट. कुछ भी नहीं हुआ. नथिंग इज रिफ्लेक्ट टू माय टेबल. व्हाई? बिकॉज हियर इज अ क्या है? वी हैव नंबर डाटा इन सेल्स कॉलम एंड A to Z is not work at number column. A to Z is only for your text data. आपके इन दोनों कॉलम्स पे क्या हो गया? सॉर्टिंग अप्लाई हो गया है. Yes. Now, if I again remove this sorting from my data, select your column header once again. Click on the sort and filter. And if you want to apply sorting on multiple columns at a time, so how we will do? Yes, anyone? How we will do? This is, oh, sorry. This is our data. Select any column of your data. Now we will come back again in, and this time I will move with this custom sort option. Expand the selection, but I want to continue with the current selection. Sort it. अब आपने सेल्स कॉलम, आपने इस डायलॉग बॉक्स के अंदर कुछ भी मैन्युअली पुट किया? नहीं किया. हमने सिर्फ कॉलम सिलेक्ट किया और हमने किस ऑप्शन के साथ मूव किया? विथ कस्टम शॉर्ट ऑप्शन. यस, वी विल बी मूविंग. नाउ सेल्स, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? ओनली सेल्स कॉलम वी हैव. बट व्हाई? बिकॉज वी हैव 3 कॉलम्स इन दिस डाटा. बिकॉज जब जो डायलॉग बॉक्स हमें अपीयर हुआ वहां पर मैंने क्या सिलेक्ट किया? मैंने सिलेक्ट किया ओनली सिलेक्शन क्राइटेरिया. जो मैंने मेरा रेंज था, सिलेक्टेड रेंज था, मैंने सिर्फ उसी के साथ किया मूव. अगर मैं एक्सपांड सिलेक्शन के साथ मूव करती तो यहाँ पर मुझे लिस्ट में कौन से 2 कॉलम और विजिबल होते? रीजन एंड लास्ट वन इज अवर स्टेट कॉलम. देन अब ये है कॉलम कि wherever you want to apply sorting, so select किया sales column. Now on what basis you want to apply sorted? बेसिकली हमारे पास हर चीज के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं.
कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसके बिहाफ पे हम अपना डिसीजन लेते हैं, कोई क्राइटेरिया सिलेक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ हमारा रीजन होता है हर चीज के पीछे। वैसे ही अगर हम सॉर्टिंग कर रहे हैं तो उसका बेस क्या है, क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर सॉर्ट ऑन वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप किस पर सॉर्ट ऑन अप्लाई करना चाहते हैं, जो आपके कॉलम की सेल वैल्यू है उस पर, या इफ यू हैव कलर इन योर कॉलम, इफ यू हैव कलर इन योर सेल वैल्यू। So on what basis we want to apply sorting? Cells values, cell color, font color, या फिर अगर हमारे फॉन्ट में क्या है, अभी हम आपको दिख रहा है कि अगर आप सेल्स कॉलम में चेक करें तो मेरी हर वैल्यू किस फॉन्ट में है, ब्लैक कलर में, राइट। तो फॉन्ट कलर, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ भी कंडीशन नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ सिंगल कलर है, ब्लैक कलर। देन वी हैव कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन, कुछ आइकन्स हमने यूज किए हैं, उसके बिहाफ पे आप सॉर्टिंग चाहते हैं। अभी इन 4 ऑप्शन में से आई हैव ओनली दिस वन, सेल वैल्यू, आई सिलेक्ट इट। इफ यू हैव सेल कलर, सिलेक्ट इट, नो प्रॉब्लम, बट नाउ वी हैव सेल वैल्यू। नाउ smallest to largest, 261 731, but I want largest to smallest, largest to smallest, click on OK. But what is my requirement? सिंपली मूव, अगर मुझे सिंपल सिंगल कॉलम पर अगर मुझे सॉर्टिंग अप्लाई करनी थी तो मुझे कोई नीड ही नहीं था कस्टम सॉर्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने का, राइट। आई विल गो विथ सेल्स, क्लिक ऑन दिस सेल्स हेडर एंड सिलेक्ट माय लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्टिंग ऑप्शन, और वहां से मेरा कंडीशन फुलफिल भी हो जाता। बट our requirement is that I want sorting on multiple columns at a time and with different data types, text as well as numeric. So for that I select one more level, add level, but here we have only sales column because वहां पर dialog box पे हमने क्या select किया, expand, continue with the selected grid. If I cancel it, if I again go with sort and filter icon, custom sort, expand the selection, sort. Now if you see, तीनों columns, how many columns are present in your data? They all are showing there. So now, first of all, I want to apply sorting on my sales column. I want largest to smallest. Now, there are 3 different buttons are there. One is add level, one is delete level, and last one is copy level. अब add level अगर मैं if I click on this add level, so यहाँ पर आपको क्या हुआ, तीनों बॉक्सेस का डुप्लीकेट यहाँ पर अपीयर हो रहा है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, I want sales for reason, then sales values, my criteria will be same, A to Z. A to Z, I will move with A to Z. Now if I then delete level, if we have multiple level, so select any cell and delete this level. If you do not want, if you by mistakenly did it, so again select it, go with delete level radio button. Then copy level कि आपको सेम कंडीशन है, मल्टीपल्स कॉलम्स है, अगर मल्टीपल कॉलम्स है तो आपको लिस्ट होगा पूरा ऐसा, तो आपको बार बार क्या करना होगा, उसको सेल वैल्यू सिलेक्ट करना होगा, उसका वो सेल, तो आप कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी आपका क्या करेगा, सेम रीजन आपको देगा। अभी मेरा एक्टिव रीजन कौन सा था, सेल्स कॉलम मेरा एक्टिव था, तो मेरा ये क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट कॉपी लेवल होते ही वो सेल्स का ही क्रिएट हुआ। बट इफ आई वांट टू डिलीट इट, सिलेक्ट इट, डिलीट इट, yes. Now if I click on this OK button, see, सबसे मैंने क्या सिलेक्ट किया, हमने रीजन में वहां पे सिलेक्ट क्या किया था, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यहाँ पर शो हो रहे हैं। देन A to Z, तो साउथ का सबसे पहले आपको को दिखाया, साउथ,
A to Z. But C, okay. If I apply sorting on sales column, because reason is little bit confused to you all. अब हम क्या करेंगे, एक और क्राइटेरिया यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, एड लेवल सिलेक्ट करेंगे, स्टेट को भी, why it will not take state A to Z, एंड यहाँ पर करेंगे Z to A. तीनों डिफरेंट टाइप्स की सॉर्टिंग हो गई. इन एडिटिंग फील्ड ऋषिकेश, click on this OK button. Why it is not happening? Now if I try with this 3 column header and again come it in, हर एक अप्रोच को आपको फॉलो करना है. रीजन सेल्स पे हमने अप्लाई किया है, राइट, स्टेट पे किया है, और रीजन को पे भी हमने क्या किया है, सिलेक्ट किया है. और यहाँ पर सिलेक्ट है माई डाटा हैज हेडर. अगर आपकी रेंज जो आपने सिलेक्ट की है उसमें अगर आपके पास एग्जिस्टिंग हेडर है, इफ यू हैव एग्जिस्टिंग हेडर इन योर डाटा, तो check it, otherwise unchecked it, and click on this. If I delete this reason 1 and click on OK, अब भी वर्क नहीं कर रहा है. Why it is not working, guys? It will clear you with the help of this PDF. Just a minute. See, this dialog box will appear to us. Up with the help of custom sort, you can add the level or delete the level. Okay, वो PDF आपका ऐड नहीं हुआ है. So can anyone tell me why it is not working? Yes. अभी आपको डाटा दिख रहा है? Yes or no? Tell me. Yes, Fast. ma'am. अभी मैंने तीनों कॉलम पे सॉर्टिंग अप्लाई किया. अब आपको दिख रहा है हमने सॉर्टिंग अप्लाई किया A to Z. यस, आपने ma'am. किसी ने भी किसी का भी फोकस स्क्रीन पर लास्ट 10 मिनट से नहीं था. यस, बिकॉज जब हमने फर्स्ट टाइम हमने जनरल अप्रोच फॉलो किया, हमने सिलेक्ट किया कॉलम हेडर्स को और हमने सिलेक्ट किया व्हाट आई वी सिलेक्ट A to Z, तभी हमारे तीनों कॉलम्स में क्या हुआ था, रिफ्लेक्शन हुआ था. बट किसी ने भी इंटरप्शन नहीं किया कि मैम आपने कहा कि नंबर डाटा पे वो वर्क नहीं किया, बट इट इज वर्किंग. यस, इसका डायरेक्ट मतलब क्या है, आपका किसी का फोकस ही क्लास के अंदर नहीं था. सेम फोकस मैम था. यस, मैम फोकस था, बट एक्चुअली में थोड़ा इसकी कम नॉलेज है, तो इसलिए मतलब बीच में इंटरप्ट नहीं किया. ओके, फोकस था. नॉलेज नॉलेज का या नॉलेज यहाँ पर मैटर ही नहीं कर रहा. आपको मैंने बताया कि हमें हमें सॉर्टिंग अप्लाई करना है. सॉर्टिंग का डेफिनेशन ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि डाटा को Yes, ma'am. अरेंज करना इज सॉर्टिंग, इज नोन एज सॉर्टिंग, कि हम डाटा को किसी भी एक ट्रेंड में उसको पैटर्न में अरेंज कर रहे हैं. तो जब मैंने इन तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट किया और ऑप्शन किसके साथ मूव किया, A to Z. अब A to Z से अगर आप समझे तो अल्फाबेटिकली तो वो क्या है, ABCD, बट फॉर नंबर वो है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग Yes. ऑर्डर मतलब कि आपका क्या हो रहा है, अभी आपको सेल्स कॉलम में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या दिख रही है, 3040. देन वी हैव 1819, देन वी हैव 1394. स्टेट क्या है, A, बिकॉज A to Z. यस, सबसे पहले सॉर्टिंग कहाँ अप्लाई हुई, स्टेट कॉलम पर.
देन रीजन कॉलम पर, देन सेल्स कॉलम पर। नाउ इट इज क्लियर टू यू। Yes. एक मेरा एडवाइस है आप सभी के लिए, नोट इट इन योर नोटपैड, इट इज वेरी नेसेसरी टू यू ऑल। whenever you apply sorting on your original data, on your confidential data, always add one index column before your existing data. Always add one index column. Why one index column? See, if I save this file, if I save this sheet in my local system, okay, now in future I want my original data back again, so we are not able to get it back. If I save it, if I reopen it, so at that time I am not able to get my data, get my original data back, because your sorting is not able to find that. So when you want your original data at any time, so always add one index column. So what is the benefit of index column, that will I show you. Sorting is clear to everyone. So total आपके Yes, पास ma'am. टैक्स डाटा के लिए 2 टाइप्स हैं, A to Z एंड Z to A. आप उसको आपका टैक्स का सॉर्टिंग बहुत रेयर, अगर आपका फील्ड, अगर कुछ आपको कस्टमर नेम्स, एम्प्लॉयज नेम्स, पेशेंट नेम का है, तो उस काम पर, उस टाइम पर आपका टेक्स्ट सॉर्टिंग काम आता है. अदरवाइज इफ यू आर इन आईटी कंपनीज, इफ यू आर इन एमएनसी कंपनीज, एनीवेयर, सो मोस्टली आपका नंबर सॉर्टिंग ही आप यूज कर देंगे. नाउ आई विल शो यू, इफ आई गो बैक, this is my original data. Yes. Yes, ma'am. So if I add one index column, sorry, ये सबको आता है. अगर मैं Yes, ma'am. आपको बोलूं कि सीक्वेंस कॉलम ऐड करो, सो हाउ यू विल डू? सेम मेथड यू फॉलो. Yes, ma'am. अगर किसी स्टूडेंट्स को, न्यू यूजर को नहीं पता, तो आपको करना क्या है, आपको whichever formula you are using and you want to apply it in complete column till your last active cell, so put your value, your formula, and here in this box you have this small plus icon. Click on it, then you have this small square box is appearing on your screen. Click on this drop down icon and fill series. Fill series आपका क्या ऑप्शन करेगा, आपको सीरीज दे रहा है 1 2 3, दैट इज सीरीज. बट इफ यू वांट टू, अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई किया, वो फॉर्मेटिंग आपने सिंगल सेल में अप्लाई किया, बट यू वांट ऑन योर कंप्लीट कॉलम, सो एट दैट टाइम विच ऑप्शन यू सिलेक्ट, फिल फॉर्मेटिंग ओनली. थर्ड आपका ऑप्शन है फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, कि आपने उस सेल पे आपका फॉर्मेटिंग है, उसका वैल्यू तो आपको फिल करना है, बट वो फॉर्मेटिंग आपको, यू डू नॉट वांट दैट फॉर्मेटिंग फॉर योर अदर सेल्स, सो फिल विदाउट फॉर्मेटिंग. फ्लैश फिल का कॉन्सेप्ट हम डिटेल में कवर करेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास. सो आई वांट index column, so I will go with this fill series. If you want to copy the values, एक सिंगल सेल में आपने वैल्यू पुट किया and you want that in complete column, so here we have option for that also, copy cells, कि आपका लास्ट एक्टिव सेल तक क्या होगा, जो सेल आपने सिलेक्ट करके आपने प्लस डबल क्लिक किया है, तो वो ही सेल का वैल्यू आपके कंप्लीट कॉलम में आपको अपीयर होगा टिल योर लास्ट एक्टिव सेल. दैट इज क्लियर टू एवरीवन, आई थिंक. Yes, ma'am. Okay. So if I delete this cell, so index column यहाँ पर आपको दिख रहा है.
अब मैंने इसको किया सीरियल नंबर, इसको मैंने नाम दे दिया सीरियल नंबर। सेम कलर में इसमें पुट कर देती हूँ। फॉर्मेट यूज कर लीजिए मैम। अभी के लिए ऐसे छोड़ते हैं। तो नाउ इफ आई अप्लाई sorting on these complete cells on my this sales column, I want to apply sorting. Largest to smallest. आपका कंटिन्यू जैसे ही मैंने किया एक्सपांड दी सिलेक्शन, तो आपका क्या हो गया, आपका इंडेक्स भी क्या हो गया, सॉर्ट हो गया, राइट। अब आपकी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कौन सी रो पे है, 2698। यस। यस नाउ मैम। इफ आई सेव इट, if I save it in my local and in future after 2-3 months I want to get my data back, I want my original data, so how we will extract this data from this sort data? No need to do anything, simply come on your serial number, select your column, क्या करना है, smallest to largest, क्या करना है, smallest to largest। yes, क्योंकि वैल्यू में भी आपको याद ना हो, बट एवरीवन नोस इंडेक्स विल बी स्टार्ट फ्रॉम 0 और 1 ओनली। यस, 0 रेयर चांसेस में इंडेक्स स्टार्ट होता है, बट मोस्टली 99.9% आपका इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, आपका सीरियल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम 1। यस, सभी यस एग्री करते हैं। यस मैम। Yes, ma'am. So that's how you are able to extract your data, original data. So that is my personal advice to you all. Always add one index column before your data whenever you want to do sorting on your data. So अभी सबको समझ आ रहा है कि उसका नीड है क्यों एक्चुअल में। यस मैम। ओके, गुड। सब टोटल फॉर्मूला सबको क्लियर है? एनी डाउट टिल सब टोटल फॉर फिल्टर कंसेप्ट और योर sorting concept? यस मैम। No doubt? नो डाउट मैम। Okay, so okay, now I give some color. Some random color I will put it. Sorry. Green. रेड। 3 कलर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताती हूँ सबसे पहले, ताकि आप रिलेट कर पाओ। आप किसी प्रोफाइल पर काम कर रहे हैं, उससे पहले आप क्या है, इंटर्न हो, उससे पहले या इंटर्न हो या न्यू ज्वाइनी हो, तो जो आपसे पहले उस प्रोफाइल पर या वो इंटर्न था या उस प्रोफाइल के लिए काम कर रहा था, तो वो कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था, ठीक है। और वो प्रोजेक्ट्स क्या था, रनिंग था मल्टीपल स्टेट्स में, जिस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहा था। अब उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये येलो कलर उन स्टेट्स को दिया जहां उसका प्रोजेक्ट किस लेवल का है, इंटरमीडिएट लेवल का। ग्रीन कलर उसने उन स्टेट्स के लिए सिलेक्ट किया जहां पर उसका प्रोजेक्ट स्टार्टअप है। एंड रेड कलर आप बोल सकते हैं या तो उसका प्रोजेक्ट वहां एंड होने वाला था, मे बी ये किसी एजुकेशन कंपनी का है, तो रेड कलर क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये बैच अभी, ये कोर्स अभी खत्म होने वाला है। दैट्स हाउ यू आर एबल टू रिलेट। सो नाउ यू आर न्यू ज्वाइनिंग एट सेम पोजीशन, तो वो आपको उसने डाटा हैंड ओवर किया,
जैसे ही आपको उसने आपको डाटा हैंड ओवर किया, तो आपने डाटा चेक किया। जब भी किसी भी प्रोफाइल के लिए हम चाहते हैं, हमें जो डाटा पे जिस पे हमें काम करना होता है, सबसे पहले हमारा एक एम्प्लॉय का काम क्या होता है? डाटा को अच्छे से एक्सप्लोर करना, कि उस डाटा के अंदर है क्या एक्चुअल में, राइट? दैट इज द फर्स्ट स्टेप। फिर उसका कंडीशन, उसका रिक्वायरमेंट जानना कि उसका यूज क्या है। तो अब मैंने डाटा तो एक्सप्लोर कर लिया, मैंने डाटा में देखा कि ये कुछ स्टेट्स हैं जिसमें कुछ स्टेट्स में ग्रीन कलर है, कुछ स्टेट्स में येलो कलर है, किसी स्टेट्स में रेड कलर है। तो इसको जानने के लिए मुझे उनसे डिस्कस करना होगा। अब उन्होंने मुझे बताया, ये मुझे उनसे डिस्कस करना होगा। तो ये क्या हुआ कि मुझे नॉलेज ही नहीं है। वी डू नॉट हैव एडवांस नॉलेज ऑफ एक्सेल, अगर मैं उनसे पूछ रही हूँ तो। बिकॉज हाँ, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपने ये कलर अप्लाई किए हैं तो ये कौन से स्टेट है, बट आपको इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ये कलर जब अगर आप आईटी कंपनी में काम करते हैं तो बहुत मैटर करते हैं। बिकॉज एट द एंड आपको क्या करना होता है? डाटा को कन्वर्ट करना होता है विजुअलाइजेशन में, डैशबोर्ड में। In future I will show you, some of my students already makes very good dashboards, dynamic dashboard with the help of only Excel. They do not use Power BI, Qlik, Tableau. Only in Excel they are able to make this dynamic dashboard. So तो अगर आपने सीखा है तो आपको इतना नॉलेज होगा कि अगर कलर यूज किया तो मे बी कुछ स्पेसिफिक ही वो स्टेट्स है जहां में कलर यूज हुए हैं। तो नाउ वी हैव आइडिया, चाहे वो हमने उनसे डिस्कस किया हो या फिर वो हमारा खुद का नॉलेज है कि येलो कलर वो है जहां पर मेरा ये प्रोजेक्ट यहाँ इंटरमीडिएट लेवल पे है, उसको मुझे आगे लेके जाना है। ग्रीन सिर्फ स्टार्टअप है। तो अब अभी अगर हम चेक करें तो वी हैव ओनली 10,000 रे। सो 10,000 रोज के लिए मे बी मैं मैनुअली क्रॉस चेक डाटा को करूं, बट व्हाट व्हेन वी हैव 10 lakhs डाटा। तो अगर अभी मेरे पास इसके बाद फिर से यहाँ पर येलो कलर है, इफ आई पुट दिस येलो कलर हेयर ऑल्सो, फिर से यहाँ येलो कलर, नीचे थोड़ा सा जाके फिर रेड कलर है। तो मैं ऐसे क्रॉस चेक, ऐसे मैनुअली चेक तो नहीं कर सकती। यस, बट आई वांट टू चेक कि कहाँ पर किन स्टेट्स में मेरा प्रोजेक्ट स्टार्टअप है, किन में इंटरमीडिएट है, और कहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है, या फिर रेड कलर इंडिकेट करता है मोस्टली रिस्क को कि मेरा प्रोजेक्ट वहां पर ये सक्सेसफुल नहीं है। तो हाउ वी आर एबल टू डू दैट? So for that we have one type of sorting also, that is custom sort. जिस कॉलम पर हम अप्लाई करना चाहते हैं, वी वांट टू अप्लाई ऑन स्टेट, बिकॉज मुझे स्टेट चेक करने हैं कि कहाँ पर क्या प्रोसेसिंग हो रहा है। बट नाउ वी हैव कलर इन सेल्स। यस, आई वांट टू सॉर्ट ऑन व्हाट बेसिस? ऑन कलर बेसिस, बिकॉज कलर से ही मुझे आइडिया होगा कि मेरा येलो कलर कहाँ कहाँ पर है, रेड कलर कहाँ है, ग्रीन कलर कहाँ है। So first of all, I want to check my startup. Then same कॉपी लेवल का यहाँ पर आपका क्या होगा यूज? कॉपी लेवल, क्योंकि आपके कॉलम should remain same, your basis remain same, but then after green I want intermediate. Then again now at the end I want this red color and click on this OK. So see, now you are able to see all green colors are there. If you check there, यहाँ पर हमने इसको टैक्सेस को क्या किया था? लास्ट में सिलेक्ट किया था। ग्रीन का तो हमने कंटिन्यू सिलेक्ट करके रेंज, तब हमने ग्रीन कलर फिल किया था। बट इसीलिए मैंने क्या किया था, टैक्सेस में एक अलग से कुछ रोज को छोड़ के वहां पर क्या किया था? सिलेक्ट किया था। आपको सारा येलो कलर पता चल गया कि किन किन स्टेट्स में आपका प्रोजेक्ट इंटरमीडिएट लेवल पर है। और लास्ट में आपको पता चला कि इन
कुछ स्टेट्स में आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। नाउ यू आर एबल टू नो दैट विद इन हार्डली 1 मिनट, सिर्फ आपको 1 मिनट मुश्किल से लगेगा और आपको सारा इंफॉर्मेशन आपके प्रोजेक्ट के बारे में पता चल जाएगा, इफ यू हैव नॉलेज ऑफ योर कस्टम सॉर्टिंग। यस, सेम आप आइकन्स भी यूज कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास, इफ आई शो यू, तो हमारे पास कुछ क्या होते हैं, हमारे पास डाटा बार्स होते हैं। तो अब इन डाटा बार्स की हेल्प से आपका क्या बेनिफिट हो सकता है, इफ आई शो यू, सिलेक्ट योर डी कॉलम, डाटा बार्स, सॉलिड फिल। तो ये आपको ये जो फिल दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, आपकी वैल्यू दिखा रहा है कि वो कितनी कम है। जो आपकी लार्जेस्ट सेल है, हाईएस्ट सेल है, उसके कंपेयर में ये क्या है, ये 261 ना के बराबर है। इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं एज कंपेयर टू अवर हाईएस्ट सेल। So now if you want to apply sorting on the behalfing of this formatting, so you are able to do that with the help of custom sorting. Yes, now it is clear to everyone. Yes, ma'am. Okay, so that is enough for today, or we will move towards next module. Today I will give you one assignment, also one theory assignment. First of all, I want to give you, after your first assignment, I will give you one practical exam, one practically assignment. Do it, I will share one data for that, and do it according to your assignment requirement. Okay, असाइनमेंट आपको ग्रुप में मिलेगा, मैं जस्ट क्लास के बाद आपको असाइनमेंट शेयर कर दूंगी। ओके, सो now we have only 12 minutes, 13 to 14 minutes we have. So if you want to कि नेक्स्ट मॉड्यूल हम स्टार्ट करें, या अगर आपका किसी का डाउट है वो हम डिस्कस करें। अगर किसी का डाउट नहीं है, so till then we will discuss this theory concept of this reference. Yes, we will move towards theory concept of reference. Yes, ma'am. Okay, Yes, good. ma'am. So what is the shortcut for removing blank space? For blank space, mostly we will use formula. And for blank, if you have blank cells, so for that we have one shortcut, that is Control G. Control G में आप cells, row, column सबको remove कर सकते हैं, but space I am not able to understand what is the meaning of your space. If you have space in this south, you want to know that? ऋषिकेश, किस टाइप का स्पेस आप डिस्कस कर रहे हैं? ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस अगर आप सेल का डिस्कस कर रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल जी वी आर एबल टू डू दैट। ओके, गुड, कंट्रोल जी। ओके, आई विल शो यू। यस, गॉट इट, गुड, वेरी गुड। if I show you this PDF once again, reference. So what is reference? Tell me, anyone from you, what is reference? मैं, आप ये मत सोचना कि मैम हम तो यहाँ सीखने के लिए आए हैं। अगर हमें पता होता, कुछ स्टूडेंट्स का मेंटली होता है कि हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं, आप हमसे पूछ रहे हो। मैं आपसे इसलिए वो चीज पूछ रही हूँ कि आप लोग सब एजुकेटेड हो यहाँ पर, कोई यहाँ पर अनपढ़ नहीं बैठा है, कोई 5th स्टैंडर्ड का यहाँ पर नहीं बैठा है कि उसको रेफरेंस का मीनिंग नहीं पता, आपको सॉर्टिंग का मीनिंग नहीं पता। एवरीवन नो फिल्टर, एवरीवन नो सॉर्टिंग, एवरीवन नो रेफरेंस आल्सो, बट डिफरेंस क्या है? रेफरेंस आपने मे बी, आपको वर्ड पता था, रेफरेंस आपने लिटरेचर में पढ़ा था, डिक्शनरी में पढ़ा था, उसका मीनिंग आपको पता है, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस, बट आपको यूज केस नहीं पता, दैट इज वन डिफरेंट थिंग। बट आई वांट टू नो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेम ऑफ रेफरेंस ओनली। मैंने आपसे यूज नहीं पूछा, व्हाट इज द यूज ऑफ रेफरेंस इन एक्सेल, आई ओनली वांट टू आस्क
What do you understand with the name of reference? Yes, guys? Okay. I will give you one example. Then you tell me. अगर मैं, yes, Reference means like A value A value reference to B value, like that. Jitendra, I tell you one simple way for reference. See, if you already know this reference concept, you know many I will show you this file. You know many these files. You know reference, you already know this reference, you already know text to column, you already know flash fill, you already know very basic of your Excel. So I whenever I take your class, so मैंने देखा जितेंद्र already know this basic Excel. तो मैं आपको आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं आपको मूव कर रही हूँ अपने उस बैच में जहां पर मैं पढ़ा रही हूँ एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेल, बिकॉज वो बैच रनिंग है लास्ट 2 मंथ से। तो अभी उस बैच में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एडवांस कॉन्सेप्ट है और मुझे पता है कि बेसिक आपका क्लियर है, बट यू डू नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ एडवांस एक्सेल। सो डायरेक्टली मैंने आपको रेफर किया अपने 2:30 बैच से 4 PM बैच में। यस, नाउ यू आर एबल टू रिलेट व्हाट इज रेफरेंसिंग। Yes, yes. सेकंड एग्जांपल, कई बार हमें कुछ हुआ, नॉर्मली पेन हुआ, हम अपने किसी भी नॉर्मल हॉस्पिटल में गए नियर बाय लोकेशन में, बट वहां पर जाके आपको पता चला कि आपका जो ये बीमारी है ये छोटा नहीं बड़ा है, तो वो हॉस्पिटल आपको क्या करेगा, रेफर करेगा बड़े हॉस्पिटल में। यस, so that is the reference concept. Now you are able to relate it. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, same it is working in your Excel also. So Excel में इसके reference का meaning same है, but Excel में उसको divide किया 3 parts में. One is relative reference, second one is absolute reference, and last one is your mixed reference. तीनों का use अलग है, requirement अलग है, important topic है। आप कितने भी बड़े लेवल की कंपनी में क्यों ना चले जाओ, इसका नीड आपको होगा ही होगा। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। यस, so relate reference is very important topic. Subtotal is very powerful, not important, very powerful. You are able to do many calculation within a second, but reference is very important according to every field point of view. So we have 3 types of references. Relative reference. So first of all, what is relative reference, ma'am? So what is the definition of relative reference? All by default, all cell references are relative references. ध्यान से सुनो, by default, all cell references are relative references. What is cell? Combination of row and column, we knowing as an cell. Yes, अब फर्स्ट लाइन आपको क्या कह रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट जो सेल है वो रिलेटिव रेफरेंस के अंडर है। रिलेटिव रेफरेंस के अंडर कैसे है, दैट आई विल शो यू। नाउ वी आर इन विच सेल, वी आर इन I9. यस, बट Yes. if I drag it in downward direction, so where I am in I10 cell. Yes, I10 सेम सीरीज आपका फॉलो हो रहा है, कॉलम आपका वहां पर सेम है आई, तो बाय डिफॉल्ट उनका क्या है, रेफरेंस है। जो ये लाइन इनके बीच में ये क्या दे रही है, एक जॉइंट क्रिएट कर रही है इन दोनों के बीच में। बट इफ आई rather than I move downward, if I move vertically direction, so अभी हम कहां पर है, I am in K9, तो अब भी यहाँ पर भी I9 है, J9 है, K9 है। वहां पर मेरा क्या था, कॉलम सेम था, यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, रो सेम हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट सेल रेफरेंस यहाँ पर क्या है, जॉइंट है। सबको समझ आ रहा है कि अगर मैं Yes, ma'am. डाउनवर्ड मूव कर रही हूँ तो मेरा कॉलम सेम है, और मैं अगर आप वर्टिकली आप मूव कर रहे हो साइड बाय साइड तो आपका क्या है, रो नंबर शुड बी सेम।
That's why we are saying कि we by default all cell references are relative references. That I will show you with one example also. See, I put 1 2 3, ये कुछ वैल्यूज मैंने यहाँ एंटर किया है एंड आई एम यूजिंग वन फॉर्मूला. नो नीड टू वरी, we will do everything in more details, but I do this calculation for your understanding only right now. I use some formula for that. That is my sum 1 and that is my sum 2. Bracket close, hit on enter. 3 है यहाँ पर, yes, but now if I drag it, वैल्यू दे रहा है, it will working. So but अगर आप, मैंने आपको ओवरव्यू जब एक्सेल स्क्रीन का दिया था, मैंने आपको बताया कि जब भी आप कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो आपको वो कहाँ दिखता है, इन योर फॉर्मूला बार यू आर एबल टू सी दैट. अब आपको दिख रहा है, मैंने जब फर्स्ट फॉर्मूला जब मैंने टाइप किया मैनुअली तो मैंने वहां पर क्या यूज किया, मैंने उसको रेफरेंस दिया सम फॉर्मूला को I9 और I10 का. बट if I come in this next cell, so here what is this, I10 और I11 by default it is coming. I10 मैंने रेफर नहीं किया, I11 मैंने रेफर नहीं किया, मैंने रेफर किया I9 as an first number, I10 as an second number. But what it will showing me in next cell, it will showing me I10 or I11 instead of I9 or I10. Why? Because they follow relative reference concept there. Yes, जब आप उसको ड्रैग कर रहे हैं तो आपका वैल्यू बाय डिफॉल्ट चेंज हो रहा है. दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज रेफरेंस कॉन्सेप्ट. जस्ट अ सेकंड गाइस. तो सबको क्लियर है रेफरेंस का अभी कि रिलेटिव रेफरेंस जब आपका बाय डिफॉल्ट वैल्यू चेंज हो रहा है, जब आप उसको किसी भी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं तो आपका वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है और अब वहां पर आपको कोई एरर नहीं मिल रहा. तो दैट इज शोइंग अस रिलेटिव रेफरेंस. अगर आप कॉपी कंटिन्यू करें इस डेफिनेशन को तो सेकंड आपका लाइन है, व्हेन कॉपीड अक्रॉस मल्टीपल सेल्स दे चेंज बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ रोज एंड कॉलम. जैसा कि मैंने अभी एक सेकंड पहले आपको दिखाया कि दे चेंज बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ रो एंड कॉलम. अब यहाँ पर फॉर्मूला में हमारा सेम हो रहा है, यहाँ पर उसकी वैल्यू मैंने पुट की मैनुअली, बट यहाँ पर क्या हुआ, उसने अपनी वैल्यू को चेंज कर लिया ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू रो एंड कॉलम पोजीशन. Then for example, if you copy the formula A1 plus V1 from row 1 to row 2, that I also show you. That is A column and that is B column. 1, 2, 3, 4. Now if I use here A1, आपको सेल का नंबर है आपका H19 प्लस आपका I19 and hit on enter. 2 plus 1 is equal to 3. But what if I drag it downward? It will giving me 3 plus 4 is equal to 7. But why? Because यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, H19. अब वो H19 क्या हो गया आपका, कन्वर्ट हो गया किसमें, H20. H19 कन्वर्ट हो गया आपके H20 में. क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि दे आर यूजिंग रेफरेंस कॉन्सेप्ट्स देयर. Relative reference are especially convenient whenever you need to repeat the same calculation. If you want in your column A1 plus V1 in your complete column, so at that time you go with this relative reference concept. See, ये प्रैक्टिकली है, इसका स्नैप जो मैंने ऐड किया है इसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे.
तो एब्सोल्यूट रेफरेंस आपका वो रेफरेंस है, देयर मे बी टाइम्स व्हेन यू डू नॉट वांट ए सेल्फ रेफरेंस, कि आपने जो पुट किया वो मुझे फिक्स चाहिए। कई बार होता है ना कि हम बोल देते हैं कि ये मेरा बहुत ही अच्छा बच्चा है, मैं इसको यहाँ बिठा दूंगा तो वो बिल्कुल मूव नहीं होगा। तो वो जो मूव नहीं होगा उस बच्चे को, अगर हम उस बच्चे को नाम दे तो वो बच्चा क्या है, एब्सोल्यूट रेफरेंस। वो वहां पर तब तक फिक्स है जब तक मैंने उसको कहा कि यहीं पर मुझे मिलना, वो वहीं पर रहा। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज एब्सोल्यूट रेफरेंस, कि वो फिक्स हो गया, ना वो दाएं जाएगा ना वो बाएं जाएगा, ना वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ना वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। दैट वैल्यू इज नोन एज रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस। अगर कोई ऑलरेडी एक्सेल पर काम करता है तो उन्होंने मे बी ये इशू फेस किया हो कि जब कुछ वैल्यूज हम क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं, तो वो हमें क्या देती है, एरर शो करती है। कौन सा एरर, रेफरेंस एरर। रेफरेंस एरर वो क्यों शो करती है, बिकॉज वहां पर मे बी एब्सोल्यूट रेफरेंस अप्लाई हो, जब बट एब्सोल्यूट रेफरेंस हो तो यू आर नॉट एबल टू ड्रैग इट इन एनी डायरेक्शन। But if we have relative reference, so we are able to do that. But if we have absolute reference, we are not able to drag it in any direction. But what about our last reference? So for last reference, I give you one simple definition. सिंपल है, रिलेटिव रेफरेंस में आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हो अपनी वैल्यू को अपनी कैलकुलेशन में। एब्सोल्यूट में आपका वैल्यू फिक्स है, ना वो लेफ्ट जाएगा ना वो राइट जाएगा ना वो बैकवर्ड जाएगा ना वो फॉरवर्ड जाएगा। बट इफ वी हैव मिक्स्ड रेफरेंस, तो एट दैट टाइम इफ वी हैव कॉलम मिक्स्ड रेफरेंस, मतलब या तो आपका कॉलम रेफरेंस है या फिर आपका रो रेफरेंस है, बट एब्सोल्यूट में दोनों है, कॉलम भी और रो भी। और आपके रिलेटिव में कोई भी नहीं है, आप उसको किसी ना कॉलम का रेफरेंस है ना रो का रेफरेंस है, यू आर एबल टू डू एवरीथिंग इन रिलेटिव रेफरेंस। बट एब्सोल्यूट में रो और कॉलम रेफरेंस दोनों है, इसलिए हम किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। बट मिक्स्ड रेफरेंस में हमारे पास टू टाइप्स की रेफरेंस होती है, रो रेफरेंस और कॉलम रेफरेंस। इफ वी हैव कॉलम रेफरेंस, so we are able to drag our data, our formula in downward direction, in same column we are able to drag it. But if we have row reference, so we are able to drag it in same row, वहां पर हम उसको कॉलम में मूव नहीं कर सकते, बट सेम रो में हम वो कैलकुलेशन रिपीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल फॉर्मूला दैट वी कवर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। So I think everything theory is almost clear to you about reference. Now you are able to know what is reference, how many types of reference we have in Excel. Yes, everyone? Yes, ma'am. यस Okay. मैम। So for today, that is enough. If you want to ask something, so please let me know. Otherwise, leave the class. Bye, everyone. I will stop my screen.